Thank you so much for your patience, everyone. We'll be starting. Where mediocrity is passed off as good work, where the bare minimum is the standard, and where terms like average work, comfort zone prevail more than what truly means good work. Today's discussion on the pursuit of excellence, why great work is rare, brings me back to a very memorable dialogue that we heard. Excellence का पीछा करो, success झक मार के पीछे आएगा. While it's easier said than done, the pursuit of excellence takes more than adrenaline and courage. It takes the right mindset along with the right direction. Great work, as it's termed, is not uncommon, it's rare. While it's not impossible, I suppose, it can just be a little bit possible if we all just push a little bit ourselves towards the edge. Yes. So without further ado, the moderator for this session is Dr. Payal Mehta. Ma'am is an assistant professor at the Faculty of Law, GLS University, with degrees in BA Advertising and Marketing, MA, MBA, LLB, and a doctorate. Our first speaker for this session is Mr. Ajay Chaudhary, IPS. Sir joined the Indian Police Service in 1996 and is currently posted as the Special Commissioner of Traffic in Delhi Police. Let's welcome Sir with a huge round of applause. Our second guest for this session is Dr. Hiralal IAS. Sir is a visionary civil servant known for his transformative leadership and people-centric governance. We invite Sir. Our third guest for this session is Mr. R.S. Yadav. Sir is the General Manager in Automation at ONGC. Let's invite him with a huge round of applause. Hello. Good afternoon, everyone. After lunch sessions are usually heavy, and the kind of guests that we are having, I'm sure it is going to be heavily in such a manner that it would be heavy with knowledge, it would be heavy with information, and it would be very, very rich in getting the information. As it has already been introduced, our three esteemed guests with us today. ये उन फील्ड्स के महारथी है जहाँ पे पहुँचना लोगों का सपना होता है. If we just talk about our first guest, Mr. Ajay ji, who is an IPS officer at Delhi. And while talking to him, we just got to know that he is having the degree in BA Honours in English from Aligarh University. As in the earlier session, इसके पहले के session में यही बात हो रही थी कि education किसका कितना होता है. So we are so much tempted to generalize the things कि ये इस field में है तो इनके पास यही degree होगी, ऐसा ही उनका background होगा. But sir, who is an IPS officer at Delhi, the capital of India, he is having the degree in literature and he is so much associated with the medium of expressions and cinema too. It's a rare combination, and that's why the topic for today for panel discussion is pursuit of excellence, why the excellence is rare. There is a famous book, Pursuit of Excellence itself. In that, it has been said that if you make the affirmations, you achieve happiness. So, sir, we would like to know it from you, that what are the affirmations that you make to achieve the excellence and through excellence, happiness. Thank you so much, ma'am, and thank you everyone in the audience. और as ma'am said कि
लंच के बाद के सेशंस बहुत हैवी होते हैं, स्पेशली इफ़ द लंच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो थैंक यू उमाशंकर जी फॉर द सम्पचुअस लंच. एंड एज फार एज द टॉपिक इज़ कंसर्न, और मैम ने कहा कि ऊंचाई और ये सब, तो ये इसमें थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी होता है. और जहाँ तक किस फील्ड में आपने स्टडीज़ की हैं और किस फील्ड में आपने कैरियर आपका मिला है, तो यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें दिस बिकम्स टोटली इरेलीवेंट. देर आर पीपल हु हैव स्टडीड वेटरनरी साइंस एंड दे आर वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. देर आर पीपल from IIM and IIT and they are working in the Ministry of Culture. Or somebody who has studied Hindi literature might be heading the shipping ministry or Ministry of Information Technology. तो ये एक myth है, but I would say that specialization matters, that is very important, but at the same time the people coming from the liberal arts, they also make their contribution in their own way. तो इस एक इंस्टीट्यूशन के एग्ज़ाम्स में द लाइन्स गेट ब्लर्ड. यू माइट हैव स्टडीड हिंदी लिटरेचर, पाली लिटरेचर और पर्शियन और उर्दू, एंड यू माइट बी बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट. इट इज़ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर ट्रेनिंग एंड द वर्क दैट यू अंडरटेक, यू लर्न सो मैनी थिंग्स. मेरे कॉलीग, हमारे भाई हीरालाल जी, जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बुंदेलखंड के इलाके में, जहाँ के वाटर टेबल बहुत नीचे चली जाती है. तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन के लिए सोशली ओरिएंटेड होना, सोशली अवेयर होना, सोशली कमिटेड होना, वो बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक बात आई कि एक्सीलेंस क्या है, हाउ डू वी डिफाइन एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस को कैसे परसू किया जाए, तो ये बहुत ही लंबे चौड़े विषय हैं. और मैं तो समझता हूँ कि ज़िंदगी में डेस्टिनी और किस्मत का बहुत बड़ा रोल है. कौन सी सिचुएशन, कौन सा इंटरेक्शन आपको कहाँ ले जाके पहुँचा देता है. तो हम लोग भी कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि यू नेवर नो कि वेयर विल यू लैंड अप इन योर लाइफ. हाँ, जो थोड़ी देर पहले के सेशंस में हम लोगों को लोग आर्टिस्ट लोग मिले, कलाकार लोग मिले, साहित्यकार लोग मिले. They are courageous people, they pursue their passion. But people like हीरालाल जी, और मैं भी अपने आप को क्लेम कर सकता हूँ कि एक बार अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी आप पैशनेटली काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत असमानताएं हैं, बहुत भेदभाव है. अगर आप पैशन के साथ काम करते हैं तो आप ज़रूर एक जनता में अपनी एक पहचान बनाते हैं. और जब आप किसी पोस्टिंग को छोड़ के भी चले जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको याद करते हैं कि साहब इनसे पहले या इनके बाद या इससे 10 साल पहले सो एंड सो इस नाम के कोई अधिकारी आए थे और उन्होंने अच्छा काम किया था. थैंक यू मैम. Thank you, sir. That was really inspirational. Question to Dr. Hiralal. Sir, you are an IAS officer. जैसे अजय सर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली फॉर वाटर असेसमेंट एंड ऑल. एक इसके पहले के सेशन में इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी का ट्रेलर हम सब ने देखा, दैट वाज ड्रॉप आउट. सर, ऐसी ही एक मूवी आई थी 12th फेल. आई एम श्योर आपने सुना होगा, यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने भी 12th फेल. जी 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 जी, उन्हीं के ऊपर से. इट वाज रियल लाइफ स्टोरी. उसमें विक्रम मैसी जी ने एक्टिंग की थी. सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप कितना रिलेट कर सकते हो ऐसे मूवी जो आजकल बनते हैं रियल लाइफ स्टोरी पे, रियल लाइफ हीरोज़ पे, जो मूवी में दिखाया जाता है और जो रियल लाइफ स्टोरी होती है, उसमें क्या अंतर है और क्या समानता है? देखिए, जो मेरे समझ में आता है कि अभी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं क्या, और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मुझे लेना भी नहीं चाहिए. अच्छे अच्छे लोगों की फिल्में फ्लॉप हुई हैं और बहुत बड़े पावरफुल लोग हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो हर तरह से पावरफुल हैं, उनके पास सब कुछ है, उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है. और वहीं पंचायत जैसे फिल्म, तो वो उसके पीछे कोई पावर नहीं, वो ठीक हुआ है, वो अच्छा किया है.
4 सीजन तक आ गया सर। हाँ, और मैं आपको ये बताऊं, इनकी भी फिल्म अच्छी जाएगी। किसकी? उमाशंकर जी की, उमाशंकर जी एंड टीम। हाँ, वो भी अच्छी जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप किसी को बेवकूफ़ बनाते हो, मैं थोड़ा सा अपनी बेवकूफ़ बनाने का, जैसे हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई एप्लीकेशन लेके आया, हाँ हाँ बस लाओ एप्लीकेशन, कृपया उससे कार्रवाई, चला गया। फिर 2 महीना बाद आया, फिर वो साहब काम नहीं हुआ, लाओ लाओ एप्लीकेशन लिख लाओ और उससे कार्रवाई, ऐसे 4 बार आओ, उसकी कोई काम हुआ नहीं। तो हम क्या कर रहे थे? बेवकूफ़ बना रहे थे उसको। क्या बना रहे थे? बेवकूफ़। 5वें बार से आप बुलाओगे तो नहीं आएगा। ये जो हम लोगों ने झूठ बोल के, फेंक के, डिफरेंट तरीके से बेवकूफ़ बना करके ठगा है ना, अब जनता बहुत परेशान हो गई है उस ठगाई से। तो आप अब सही भी बोलते हो तो उसको भी देखती है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कहते, एक कहावत हमारे चला कि वो दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। अच्छा, मट्ठा ही पी रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मैंने कैसे कह दिया इनकी फिल्म चलेगी, और बहुत लोगों की फेल हो गई। वो अक्षय कुमार की फेल हो गई थी या कौन था वो, फिर जब वहाँ दरगाह में गए 1 करोड़ रुपया दिए तो उस पर कमेंट्री आई कि मुसलमान को मतलब थोड़ा सा फेवर में लेने का, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें पेपर में ही मैंने पढ़ा था। इनकी फिल्म इसलिए चलेगी क्योंकि इनकी रियल स्टोरी है, उसमें ठग बिद्दई नहीं है कि कर रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, आवश्यक कार्रवाई चला रहे हैं, इसलिए इनकी फिल्म चलेगी। पंचायत इसीलिए चली कि लोग पंचायत में वो जो घूस और लूट और झूठ से परेशान थे, उसको उसने दिखाया। तो देखिए, अब तो बहुत सारे माध्यम हो गए। पुराने ज़माने में फिल्म से बढ़िया सशक्त माध्यम कुछ नहीं था, और आज भी सशक्त माध्यम है। और हमें अब वो फिल्म पर भी बात आ गई, फिल्म बड़ी होनी है, वो रील भी तो फिल्म ही है यार, क्या। और सोशल मीडिया हमारे पास इतना बढ़िया सशक्त माध्यम है, सस्ता है, टिकाऊ है और सबके पास है। मैं हर पल का उपयोग करता हूँ। मैं सुबह घूमने गया तो हमारे साथ हमने कहा मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मेरा रील बनाओ 5 में 1 चक्कर का ये बनाओ, और मैंने डाल दिया और लिख दिया क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वेल्थ द बेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, और सबको घूमना चाहिए। हमने क्या किया, हमने ये जान के डाला। तो मुझे इस पर कमेंट, एक समय IIT कानपुर में ऐसे प्रोग्राम था, जॉगिंग किया, डाल दिया, तो बहुत लोगों ने देखा कहीं, अच्छा आप IAS भी हैं फिर भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मुझे ये, मैंने जान के आज ही सुबह रील डाला कि जिससे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, पिक्चर है वो मेरा, हेल्दी रहो, वेलनेस पे ध्यान दो, 10 बजे तक सोओ मत। तो रील का बहुत महत्व है, उसका कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो मैंने आपकी बात का जवाब देने की कोशिश की कि फेक, झूठ, पैसा पीछे से पूछ और फिल्म में फराड चलेगा नहीं, चाहे आप कितने शक्तिशाली हो। और इनका वाला वो कीचड़ वाला, वो साइकिल से ये जा रहे हैं ना, छोटे थे, वही वाला है इनका। वैसे हम भी गिरे हैं, ये मेरा हाथ टेढ़ा है, देखो क्या है, ये मेरा हाथ टेढ़ा है। मैं भी बचपन में साइकिल चला रहा था, चलाते चलाते एक बार गिरा, इसे टक्कर देना तो ये टेढ़ा हो गया, और प्लास्टर में जुड़ा तो ये टेढ़ा जुड़ गया, ये टेढ़ा। तो ये साइकिल वाले हम भी हैं जैसे ये हैं। तो इनकी फिल्म चलेगी और इन्होंने उसमें अच्छा काम मतलब दिखाया है, और हम सभी लोग लगेंगे कि इनके उस फिल्म को लोग देखें। अभी मैं इनके हीरो हीरोइन को तिकड़म बता रहा था कैसे चलेगा खाने पे। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, जैसे रियल लाइफ स्टोरी, जैसे 12th फेल एंड नाउ ड्रॉप आउट, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई जाती है, इसमें झूठ का छौंक नहीं होता है, इसलिए ऐसी फिल्म चलती है। थैंक यू सो मच सर। सर, माय क्वेश्चन टू यू, जैसे डॉक्टर हीरालाल सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आजकल के ज़माने में रील का भी बहुत महत्व होता है, उन्होंने खुद का अपना एग्जाम्पल भी दिया। सर, आई हैव हर्ड दिस, ये मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी आके बताते हैं कि जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एज आपको ONGC के बारे में आप अगर बता सके, तो इंटरव्यू के वक्त, आजकल के वक्त सिर्फ रिज्यूमे नहीं देखा जाता, इट इज़ नॉट ओनली CV, दे ऑल्सो सी कैंडिडेट सोशल मीडिया अकाउंट, उसके ऊपर से भी उनके जो भी गुण होते हैं या जो भी मार्किंग होती है, इट ऑल्सो हैज़ इम्पैक्ट ऑन दैट। आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? थैंक यू मैम। मैं रील पे आऊँ उससे पहले 1-2 बातें और बोल लूँ। जैसे एक्सेलेंसी की बात हो रही थी, तो मैं
शुरुआत उमाशंकर जी से करूँगा। देखिए, ये सामने लिटरेचर एंड सिनेमा लिखा है। सिनेमा ने बहुत पैसे कमाए, सदियों से कमा रहे हैं, कभी लिटरेचर पे ध्यान नहीं दिया। इट वॉज देयर, कनेक्शन वॉज देयर बिटवीन द लिटरेचर एंड सिनेमा सिंस इज से 1950 वॉट एवर डेज वी आर प्रोड्यूसिंग द सिनेमाज। एक थीम इन्होंने जो ले आया, ये शुरुआत है। हम लोग ऑफिस में ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमको फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ एक होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपका हम क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, आपके घरों में भी जो एलपीजी से खाना बनता है हम ही लोग करते हैं प्रोड्यूस पूरा। पर ये एक थीम है कि भाई जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसके लिए सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर सिनेमा में कोई हज़ारों करोड़ कमा रहा है तो लिटरेचर उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है। उसका जो वेटेज होता है, जो उसका हक बनता है, वो मिलना चाहिए। ये शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थी। आई थिंक उमाशंकर जी ने किया है। ये बात फैलनी चाहिए कि जो लोग जिसका लिटरेचर आप यूज करते हो, जिसकी कहानी यूज करते हो, या फिर जो लोग लेखक पार्ट हैं जो पर्दे पे नहीं आ पाते, उनको ड्यू वेटेज मिलना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, मेरे तो प्रेरणा स्रोत हो गए हैं उमाशंकर जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि जुनून सबके अंदर होता है, सरकमस्टेंसेस होता है। हम नौकरी में हैं, बहुत सारा जुनून है लिखने का, वो नहीं कर सकते। किसी का कुछ होगा, साहब हीरालाल साहब कर पाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी अलाउ करती होगी, कर लेते हैं साहित्य का। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपका जुनून आपको करना है तो आपका बेटर हाफ का सहयोग जरूर चाहिए। तो मैं मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उमाशंकर जी जो करना चाहते हैं वो करने पाते हैं। रियलिटी ये है कि बच्चे हैं, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स इन द, ये है कि भाई घर लेना है, लेना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब होती छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं उमाशंकर जी, और मैडम का पूरा सपोर्ट है। ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे घर में कोट भी करता हूँ मैडम का रोल कि भाई इतना समय दे पाना और ये करना। थर्ड, ये बोलना चाहूँगा कि अभी वाइब्रेंट गुजरात का एक फंक्शन महसाना में चल रहा है, उसमें हमारा जैसे कि एक पवेलियन है, उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई थी कि भाई अच्छे से होना। उसमें चीफ मिनिस्टर भी आए थे सब। हमने जो है मतलब 1 महीने से हम लोग लगे हैं। हमने 5-6 कमेटी बनाई थी। एक कमेटी में 11 लोग ये देखेंगे, 10 लोग, 5 लोग। दिस फेलो इज सिंगल हैंड ये पूरा मैनेज कर रहे हैं। मतलब रियली आई एम सरप्राइज हाउ मच एनर्जी ही हैज़ कि भाई सारा देख लेते हैं, नॉट ए सिंगल पार्ट, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो ये सबके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा, और फिल्म के लिए भी बधाई दूंगा। इसलिए दूंगा जो मैं सहमत हूँ हीरालाल साहब की बात से। आप कनेक्ट होंगे लोगों से, दर्शकों से कनेक्ट होंगे, उनकी बातों को बताएंगे, और पंचायत इसका एकदम एग्जाम्पल है। जब वो फील करेगा दर्शक आपको कनेक्ट होगा, वो भी साइकिल से गिरा होगा तो ज़रूर फिल्म देखेगा। तो कनेक्ट होंगे तो सफलता के चांसेस डेफिनेटली बढ़ ही जाते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। और हम लोगों की सबकी शुभकामनाएं सभी टीम के साथ है, प्रोड्यूसर्स और जो भी हैं, मतलब जितने भी टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अभी मैं रील पे आता हूँ, आपके क्वेश्चंस पे। तो रील से मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब जैसा साहब ने बोला कि आप 5 मिनट घूमें, आपने रील डाला तो मान लिया गया कि आपने 1 घंटा जॉगिंग करी होगी। दैट मे नॉट बी द करेक्ट ऑल्सो। तो रील जो है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल जो लोग डालते हैं, दैट मे नॉट बी द करेक्ट ऑल्सो। और लेकिन जब आप लेसन या किसी मैसेज देना चाहते वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें जो ना, इट्स आई फील कि इट्स पीपल प्रेजेंट्स ओनली द रोजी पिक्चर्स, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। और एक्सेलेंसी में आप कोई भी फील्ड में परफॉर्म करने के लिए जुनून तो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो डाउट की बात ही नहीं है। एंड आपके जो टीम है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, आपका सर्कल हो, उनका पूरा सपोर्ट चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए कि सामने वाला फेलियर से न डरे आप। और ये तो पार्ट है, आप कोई गेम खेलेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, वो पार्ट है। लेकिन पीछे से सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, तभी आदमी एक्सेल कर सकता है। और उस फील्ड का स्पेशलाइजेशन तो वो प्री रिक्विजिट है। आप अगर साहित्य में हैं, आपको बेसिक नहीं है, तो आप कोई कितना भी हम सपोर्ट करें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो सपोर्ट मस्ट है, उस फील्ड का स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, और बाकी ऊपर वाला रहता है जिसको सफल करना है। थैंक यू। थैंक यू सर। आप तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन है सर। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस,
as the student rightly mentioned when he was narrating about all the panelists आपके बारे में, it is a famous dialogue from Three Idiots movie as well कि excellence के पीछे भागो and सफलता अपने आप मिल जाएगी. आपको ये किस हद तक सही लगता है कि आपको सफलता के पीछे भागना चाहिए या एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए? What is more important in real life? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए. आप पीछे भागेंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन होगा. फिर आज जो जिस तरह का प्रेशर हमारी नई पीढ़ी के ऊपर है, परफॉर्म करने का, अचीव करने का, एक्सेल करने का, छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को गवा के, नचा के, ट्रेनिंग दिला के, एवरीबडी वांट्स कि मेरा बच्चा जो है इंडियन आइडल में क्यों नहीं है. भाई, हर बच्चे की अपने लिमिटेशंस हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं. हर बच्चा सुपरस्टार नहीं बन सकता, हर बच्चा सिंगर नहीं बन सकता, एक्टर नहीं बन सकता, सेलिब्रिटी नहीं बन सकता. और तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश की जाए. अगर आप एक बच्चे को या युवा को या किसी को भी किसी भी स्टेज में अगर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं तो शायद आप बेहतर परफॉर्मर भी बन सकते हैं, बेहतर अचीवर भी बन सकते हैं. कोई एक बहुत बड़े आदमी थे, गवर्नर थे, उनसे स्कूल के बच्चे आए हुए थे. उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर, आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा, आप यहाँ के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनके साथ काम करता था. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई मे बी गवर्नर ऑफ ए स्टेट बट आई मे बी ए 3rd क्लास पर्सन. और हो सकता है कि जो सड़क पे एक कॉबलर बैठा हुआ है, मोची बैठा हुआ है, वो मुझसे ज़्यादा बेटर इंसान हो. आप एक कल्पना करिए कि मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, एक छोटी बच्ची जा रही है या बच्चा जा रहा है और उसका जूता फट गया, इंटरव्यू देने जा रहा है, और वो कोने के उस मोची के पास रुक के अपना जूता या चप्पल ठीक कराती है या कराता है लड़का. और वो कहता है कि अब सवाल आ गया कि साहब मेरे पास पैसे हैं लेकिन चेंज नहीं है. और वो गरीब आदमी ये कह देता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ. वो उससे 5 रुपये नहीं लेता. और वही इंसान जब जाता है इंटरव्यू देने और वहाँ उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, उससे क्वेश्चन भी ठीक से न पूछे जाएं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, वो बाहर निकल के आएगा, उसकी ज़िंदगी में ये इम्प्रेशन ज़रूर रह जाएगा कि उस कोने पे जो मोची बैठता था वो बहुत अच्छा आदमी था. तो मेरा मानना ये है कि किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल नहीं, सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है. और ये जो काफ़ी सुबह से चल रहा है कि साहब, और मैडम ने भी बड़ी डरावनी पिक्चर दिखी कि कॉरपोरेट में भी पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर हैं. मेरे कोई फॉलोअर नहीं है, इससे मैं ख़राब आदमी नहीं हो गया. बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को किसी ने लाइक नहीं किया तो दे आर गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड. हम किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं? ये सब एक मृग मरीचिका है. फिर उसके बाद फिर वो फॉलोअर्स ख़रीदे जाते हैं, सबको रिक्वेस्ट की जाती है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को. फिर उसमें किसी ने लाइक नहीं किया, उससे झगड़ा किया जाता है. फिर उसको लोग बताते हैं कि लोग उससे अनफॉलो कर देते हैं, अपने फेसबुक से हटा देते हैं कि तुमने मेरी पोस्ट लाइक नहीं की थी. ये किसी भी इंसान को कहीं नहीं पहुंचा सकती. अगर आप काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया नहीं था, उससे पहले भी यहाँ बाबा आमटे भी हुए हैं, महात्मा गांधी भी हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हुए हैं, भगत सिंह भी हुए हैं. अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन डेफिनेटली मिलेगा. इस अंधी दौड़ में इससे अगर हम अपनी जनरेशन को बचा सकते हैं तो ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू कीप दी यंगस्टर्स अवे. और बहुत से देशों में तो मोबाइल को बैन ही करने जा रहे हैं. कह दिया है कि इस क्लास तक, ग्रेजुएशन लेवल तक किसी के हाथ में मोबाइल रहेगा ही नहीं. ये हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है. हमारा कोई एक्सीलेंस का परस्यूट नहीं है. हर आदमी अपने 24 आवर्स में से सारी एनर्जी दूसरों की रील्स देखने में लगा रहा है और उससे उसका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं हो रहा है. चौधरी साहब ने एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिया और ये जो प्रैक्टिकली बात बताई. मेरा आपका क्वेश्चन है
मैं उसी पे उसका दूसरा एंगल सोच रहा हूँ कि मैं बात करूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने कहा एक्सेलेंस और सफलता में किसका पीछा करना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है। तो देखिए मेरा ये मानना है कि हमें एक्सेलेंस, पीछा तो शब्द मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ, पीछा तो नहीं करना चाहिए, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़र्ट करना चाहिए कि हम एक्सेल करें, एक्सेलेंस की तरफ जाएं। अब जब आप एक्सेल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो सफल होंगे या असफल होंगे, दो ही बात होगी एक्सेल करने। सफल भी, आपने आईएएस की तैयारी की, आपने पूरा एक्सेल किया, एफर्ट मारा, सेलेक्ट हो सकते हैं और सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। लोग इसमें दोनों में हमें मिलता है, लेकिन हम उसको देखने का नज़रिया एक को बिल्कुल 100% पॉजिटिव, एक को 100% निगेटिव। पास हो गए, सेलेक्ट हो गए तो 100% पॉजिटिव, और फेल हो गए तो 100% निगेटिव। ये जो परसेप्शन है सफलता का मानक है, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? अगर आप सफल हो गए तब तो 100% आप मान ही रहे हो, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आप असफल हुए तो कहते हैं सफलता का जो पहला पाँवदान होता है वो क्या होता है? असफलता होता है। उससे लर्निंग होती है, आगे के रास्ते खुलते हैं जीने के। असफलता ही, इसीलिए कहावत भी है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये इसी से बना हुआ है। तो मेरा वर्जन इन वेरी शॉर्ट कि हमें एक्सेल करने के लिए पीछे ना भाग करके उसमें जितना आप एफर्ट डाल सकते हो डालो, और अगर आप असफल हो गए तो दुनिया आसमान नीचे नहीं आ गया, वो भी बहुत कुछ आपको देके जाता है। दैट इज कॉल्ड लर्निंग, दैट इज कॉल्ड अनुभव। पता नहीं कल मैं किसी से, कोई कह रहा था कि ये वारन बफेट बहुत धनी हैं कि नहीं? आप लोग मानते ही हैं धनी हैं, और हैं भी, मानने की कोई बात नहीं। कहे तो उन्होंने मुझे बताया, वो जो बताएं वही बता रहे, हो सकता है डाटा, कि उनको सफलता 54 या 55 साल पे मिली। 54 साल तक वो भी 55 साल तक धक्के खाते रहे, ऐसा बताया है। सही है क्या ये? तो बताओ, अब 54 साल तक वो का एक्सेल नहीं किए, फेल थे। तो मेरा वर्जन यही है जो मैंने एक एंगल देने की कोशिश की आपके क्वेश्चन को। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि डेस्टिनेशन तो सफलता ही है। हर आदमी कुछ भी करता है उसमें वो पीक पे जाना चाहता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करना है, आईएएस बनना चाहता है, सर उमाशंकर सर फिल्म बनाने जा रहे हैं तो चाहेंगे कि करण जौहर और वो सबके लेवल में आए। अदरवाइज अननोन कोई भी काम करते रहो, बहुत कम लोग हैं जो काम करते जाओ और किसी की इच्छा ना करो, बहुत रेयर कम्युनिटीज है। मैं ऐसा मानता हूँ, बीइंग ए इंजीनियर, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई चीज़ अचीव करना है, किसी में सफल होना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स पहले डिसाइड कर लो। 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो लक है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए और बाकी 4 चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए, उसमें एक्सेल कीजिए आप। तो जब वो चारों में आप एक्सेल करेंगे और लक फेवर करेगा तो ऑब्वियसली आप जाएंगे वहाँ पे। एक नई चीज़ चल रही, जो पहला वाला क्वेश्चन था मैं उसका जवाब आपको नहीं दे पाया था, सोशल मीडिया अकाउंट। आई एम बीइंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट, हमारे यहाँ तो इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। आप गेट या एग्ज़ाम की निकालिए, इंटरव्यू दीजिए, आ जाइए। सोशल मीडिया कोई देखता नहीं। पर एक नई चीज़ ऐड हुई हमारे यहाँ भी, हमारे नए चेयरमैन आए हैं। आपको जिस चीज़ के लिए रिक्रूट किया गया, सपोज आपको मैकेनिकल इंजीनियर किया गया, उसके अलावा आपको क्या आता है, ये इस बार पिछले 1 ईयर से हमारे यहाँ रिकॉर्ड में लाया गया है कि इफ़ यू आर ए वेरी गुड इंजीनियर, आप बहुत अच्छे इंजीनियर आप कर सकते हैं, बट आप टीम लीड नहीं कर सकते। तो हमारे चेयरमैन ने क्लियरली बोला है ट्रांसपेरेंटली कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एक लेवल आने के बाद आपको टीम लीड करना आना चाहिए। आप खुद ही सब जानते हो, सब कर लेते हो, तो यू मे बी गुड इंजीनियर। तो आपको, अगर नई जनरेशन के लोग यहाँ कम हैं, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें रखना चाहिए। जैसे मुझे कभी कभी जैसे वाइब्रेंट गुजरात में मुझे लीड करने का मौका मिला, ONGC को, लोगों को रिप्रेजेंट करने का, कि जो अश्विनी वैष्णव जी आए थे, प्रहलाद जोशी जी आए थे, भूपेंद्र पटेल जी आए थे। तो आई एम ए इंजीनियर, और हमारे मैनेजमेंट ने कुछ देखा कि नहीं आप फ्रंट पे आप रहोगे करके, तो टेक्निकली आई एम इंजीनियर। तो मेरा ये मानना है कुछ चीज़ें और साथ में लेके चलें। इंजीनियर हैं, जैसे साहब लोग IAS IPS हैं, साहित्य लेके चलें, और जो भी हो सकता है, मे बी गुड ओरेटर, गुड लीडर, तो ये हेल्प करेगा सफलता में। पर फाइनल डेस्टिनेशन तो सफलता ही है, चाहे वो एक्सेलेंसी से पाइए या कैसे भी पाइए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.
वेल एज इट इज़ ये 10वां साल अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का है और इसका थीम है सिनेमा और लिटरेचर। अजय जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था। इन हिज पुलिस स्टेशन इटसेल्फ ही स्टार्टेड लाइब्रेरी, और फिर उनका देख के उनसे इंस्पायर हो गए, प्रेरणा लेके बाकी की 22 लाइब्रेरीज भी शुरू की गई और जिसका लाभ सबने उठाया। सो यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स भी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, सो दे आर ईगर टू नो कि समटाइम्स सिनेमा में, फिल्म्स में और OTT पे जैसे क्राइम को दिखाया जाता है और जैसा रियल लाइफ में जो आपने देखा है उसमें क्या डिफरेंस है और एक्चुअली कैसे प्रोसेस होता है, उस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश फाड़े तो इट वुड बी ग्रेट। नहीं, बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है और उससे जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, हमारे इतने बड़े कलाकार हैं। तो एक तो आपने मेंशन किया कि हम लोगों ने एक कम्युनिटी पुलिसिंग में एक इनिशिएटिव शुरू किया कि पुलिस थाने के अंदर एक लाइब्रेरी, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इसकी बड़ी कहानी है। सुबह के सेशन में बात हो रही थी बटला हाउस की, जिसमें संदीप जी ने रोल किया है और एनकाउंटर के बाद ये फिल्म बनी थी। लेकिन वो तो फिल्म बनी थी और बाकी बातें हुई, लेकिन जो वो हालात वहाँ पर थे इमीडिएटली आफ्टर द एनकाउंटर, जिस तरह का रिजेंटमेंट था माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर, पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव दैट दिस इज़ ए जेन्युइन एनकाउंटर, और पॉलिटिकल रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और ये सिचुएशन थी कि उन एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री ऑलमोस्ट बैंड थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस दोज एरियाज़, और आई वॉज मेड दी फर्स्ट DCP ऑफ दैट एरिया। 19 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था और 19 सितंबर को हुआ था और उसके 10 दिन बाद एक नया ज़िला बना दिया गया कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो इसमें नया ज़िला बना के कोई नया DCP भेजा जाए। अब वो सिचुएशन एक ऐसी है, उसमें पॉलिटिकल बहुत बातें हुई, पूरे देश में हंगामा हुआ। अब रही बात फिल्म की, तो पहले मैं लाइब्रेरी वाला बता देता हूँ। हम लोगों ने ये सोचा कि इस दूरी को, जो जनता और पुलिस के बीच की दूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की दूरी है, इसको कैसे ख़त्म करें। हम ऐसा क्या इनिशिएटिव लें कि लोग ट्रस्ट करें कि ये हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एनिमी नहीं है। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं, कहीं कोई घटना हो रही है, फ़िलिस्तीन में हो रही है, हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही है, और सोशल मीडिया के इस युग में हर घटना से हम लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं और इमोशनली अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमने इस को ब्रिज करने के लिए हमने कोशिश की कि उसी छोटे से थाने के अंदर एक कमरे को हमने निकाला और उसमें CSR में कुछ लोगों से फंड्स लिए, बड़ी कंपनीज़ ने मदद की, कुछ लोकल लोगों ने मदद की, और एक छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें के बच्चे आकर पढ़ेंगे। तो इसमें मेरे ऊपर भी बहुत आरोप आया कि ये इनके पीछे कोई एजेंडा होगा और ये क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे फिर उनका एनकाउंटर कर देंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को एज ए चैलेंज लिया, लोकल NGOs को इन्वॉल्व किया, और उसमें लड़के और लड़कियाँ, अगर आप अभी भी चले जाएंगे तो जिस थाने के ऊपर हर महीने पथराव होता था, पिछले 12 साल में पुलिस स्टेशन के ऊपर कोई पथराव नहीं हुआ, उसी बाटला हाउस के इलाके में। और उसी मॉडल को कॉपी करते हुए दिल्ली पुलिस के 22 पुलिस थानों में ये लाइब्रेरीज़ काम कर रही हैं, जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग भी होती है, जहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी क्लासेस लोग वॉलंटरीली आके लेते हैं, बच्चों की तैयारी कराते हैं। और पिछले साल हमारे एक हेड कांस्टेबल की बेटी जो है, उसने IAS क्वालिफाई किया उसी थाने की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते पढ़ते। तो ये तो एक्सपीरियंस। अब दूसरा आपने सवाल किया था कि फिल्मों में जो जिस तरह से दिखाते हैं क्राइम को और जिस तरह से, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है, उसमें आप जब तक कोई एग्जाजरेशन नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट के साथ पेश नहीं करेंगे, तो फिर उसकी कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं रह जाती है। तो जो साउंड्स यूज़ की जाती हैं, उन्हीं साउंड से आपका दिल धक धक करता है, अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। हाँ, तो साउंड का इम्पैक्ट है, फिर विजुअल इम्पैक्ट है, कैमरा किस स्पीड से आगे बढ़ेगा, कितने मोशन में उसको कवर करेगा, क्लोजअप में दिखाएगा, उसकी एंग्जाइटी को कैसे दिखाएगा। तो वो सब चीज़ें एक सिनेमैटिक इम्पैक्ट के लिए क्रिएट की जाती हैं। और रियल जो रेट्स होती हैं वो बहुत वाकई ख़तरनाक होती हैं, बहुत डेंजरस होता है।
लोग पीपल टेक रिस्क ऑन देयर लाइफ्स। हमारे उस एनकाउंटर में भी दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हुए थे। तो रियल सिचुएशन में और सिनेमा की सिचुएशन में एक क्रिएटेड सिचुएशन है जिसको आप विजुलाइज करके बाद में इस तरह प्रेजेंटेबल बना रहे हैं कि उसको लोग पसंद करें, उसको देखें। तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, अभी इतना ही कहूँगा मैं। थैंक यू सर। डॉक्टर हीरालाल सर, आप पब्लिक सर्विस में भी है, यू आर ऑल्सो इनटू क्रिएटिव फील्ड, आप उसमें भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिकॉज यू लव सिनेमा, यू लव राइटिंग, उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन है। सो हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस? आप दोनों को कैसे संभाल पाते हैं? बिकॉज दोनों ही ऐसे काम है जिसमें यू हैव टू बी 24/7 आंसरेबल और ऑन टोज। हाउ डू यू मैनेज दैट सर? देखिए, वर्क और लाइफ का, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारा इफ़र्ट भी कम लगता है, समय भी कम लगता है और नोट भी, पैसा भी कम लगता है। अब जैसे जैसे नौजवान होंगे, शादी होगा, बच्चा होगा, बच्चे का बच्चा होगा, सब चीज़ आपका टाइम भी ज़्यादा चाहिए, बहुत लोग टैकल करना है, पैसा भी सब बहुत लोगों को देना है, तो ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब इसको कैसे बैलेंस करें? एक तरफ तो बढ़ रहा है, तो जब तक आप अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे, उससे आपका तालमेल नहीं मिलेगा। तो आपको अपने आप को बढ़ाना है। तो क्या बढ़ाना है? आपको अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाना है। तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? आप कंटिन्यूअसली 24/7 थियोरेटिकल नॉलेज गेन करिए और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करिए। तो जब आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो डिमांड है वो पूरी होती जाएगी और वर्क एंड लाइफ बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल आंसर है, इसका मैं खुद ही जीता जागता उदाहरण हूँ। जैसे मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, नौकरी में आया, फिर गया एमपीए करके आया अमेरिका में, फिर लौट के आया, नहीं पेट भरा, वो कम पड़ रहा था, फिर पीएचडी किया। मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरा डिलीट का थीसिस 2-3 दिन में सबमिट होने वाली है। क्या ये तो मेरा थियोरेटिकल नॉलेज। अब मैं फिर फिसड्डी, मैं फिर अनपढ़ हो गया। इतना पढ़ने के बाद अनपढ़ हो गया। क्या डीप टेक्नोलॉजी आ गई, हाइड्रोजन ग्रीन गैस आ गया, सेमीकंडक्टर आ गया, डेटा सेंटर, ये डीप। अब मैं फिर वो मेरा पुराना वाला पढ़ा, ऑब्सोलीट हो गया। अब मैं फिर सोच रहा हूँ मुझे डीप टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए। आई एम सर्चिंग फॉर द सम सुटेबल कोर्स। तो ये तो मेरा क्या है, ये थियोरेटिकल। और प्रैक्टिकल देखो, आज छुट्टी है तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अहमदाबाद क्या है, यहाँ पैसा लोग कैसे कमाता है, ये गाना कैसे गाता है, ये कैसे घुमाता है, ये कैसा क्वेश्चन पूछता है, बच्चा कैसे खाता है, इसको कहते हैं लर्निंग। यहाँ जो है हर आदमी कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मैं सैटरडे संडे को या तो गांव में रहूँगा या किसी पंचायत में रहूँगा या कहीं ऐसे भाषण दूंगा या सुनूंगा। क्या मैं कल परसों डे आफ्टर यस्टरडे मैं 2 जगह भाषण दे के आया। एक AKTU यूनिवर्सिटी में गया ओरिएंटेशन, और शाम को गया 400 बच्चों को, इंजीनियरिंग के बच्चों को 2 घंटा मुझसे इतना कठिन अधिकारी बड़ा होता है, नेता बड़ा होता है, तो कैसे करते हो, इतना मुझे घेरा और मैंने सबको जवाब दिया। तो वहाँ जब वो मुझे घेरेंगे, क्राइसिस क्रिएट करेंगे, तो मेरे लिए लर्निंग होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका वर्क और ये बैलेंस करना है। तो जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे आप अपने आप को बढ़ाइए थ्रू थियोरेटिकल लर्निंग एज वेल एज प्रैक्टिकल लर्निंग। दिस इज द वे, अदरवाइज नो वे आउट। क्या आपकी बीवी बच्चे आपसे खुश नहीं रहेंगे। थैंक यू सर। बता दूं, मेरा 1 सेकंड और मैं, नहीं तो ये तो इनके क्वेश्चन। मैं देने में विश्वास करता हूँ, किसमें, हमेशा। और सोशल मीडिया से मुझे देना बहुत अच्छा। आजकल मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया पे अगर मैंने कुछ डाल दिया तो उस पर जिसने भी 3-4 कमेंट किया तो मैं सोचता हूँ ये मुझसे बात करना चाहता है, कमेंट कर रहा है। लेकिन मैं IAS हूँ, वो ऐसे ऐसे डरता है, ऐसे ऐसे उसका दिल ऐसे। तो फिर मैं उसको मैसेज करता हूँ, प्लीज़ डिस्कस, अपना मोबाइल नंबर। वो 3 दिन मेरे बारे में रिसर्च करता है। मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं पिछले 1 महीना से कर रहा हूँ। और यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मैं सोशल मीडिया से पकड़ के लाए। देखो ये सामने ही बैठे हैं, इनको मैंने सोशल मीडिया से पकड़ा। ये इनका मैंने एक इंटरव्यू सुना, जिसने इंटरव्यू लिया, हमने कहा ये बलिया के हैं, ये तो बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे आदमी लग रहे हैं, इनका मुझे नंबर दो, मैं बात करूंगा। जब मैंने इनसे बात किया, फिर हमने कहा अच्छा ये तो लिटरेचर वाले हैं, उमा शंकर इनके लिए अच्छे आदमी हैं, उमा शंकर इनको जोड़ दिया इनसे। और इस साल मैं एक प्रोफेसर को भी लेके आया हूँ। क्या ये, हाँ,
वो रुपिंदर ओबराय, प्रोफेसर रुपिंदर ओबराय, ये बहुत बुद्धिमान है, ये हमारी भी गुरु हैं क्या, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जो है किरोरीमल कॉलेज की, इनकी हमारी जुड़ने की कहानी, मैं प्रैक्टिकल कहानी, ये मैं मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ। वो ये इतनी होनहार हैं, इन्होंने कहा मैं अपने बच्चों के गांव में ले जाऊंगी, सिखाऊंगी, और एक स्टार्टअप इनोवेशन का ये सेंटर चलाती हैं। इन्होंने मुझसे अप्रोच किया और ये पिछले 3 साल से मेरे हर मॉडल गाँव में जहाँ हमने डेवलप किया वहाँ बच्चों लेके ये खुद जाती हैं, और वहाँ जाती हैं, मछली भी खाती हैं, मुर्गा भी खाती हैं, और वहाँ का मटर भी खाती हैं, ये भी इंजॉय करती हैं और बच्चा भी इंजॉय करता है, और बच्चों खूब सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो फिर मैं वो मुझसे बात करता हूँ, मैं उससे ये कही बात कहता हूँ कि देखो मैं IAS अफसर हूँ और तुम जो है ये अच्छा काम करते हो, तो तुम डरना मत, तुम्हें ज़रूरत कभी भी होगा ये मेरा नंबर है, रात दिन कभी कुछ मांगोगे मदद करूँगा। हमारा यही सेंटेंस उसके लिए एक पेट्रोल पंप का काम करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ाने में। और मैंने ये महसूस किया, उसको इतना वो ऊर्जावान हो जाता, मुझसे कुछ मांगता नहीं, वो छलांग लगाता है, ऊंचाई पहुंच जाता। तो सबको देना चाहिए, सोशल मीडिया ने मुझे ये रास्ता दिया। क्या टाइम कम है, नहीं मैं और कहानियां बताता, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थैंक यू सर। किसी दिन आपकी कहानियों के ऊपर से अच्छा सा मूवीज़ बनते जाए, बनते रहे, उसकी राह रहेगी हमें। सर, अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए जिसमें ऐसा सिनेमा बनाना है, ऐसा मूवी बनाना है जिसके थ्रू नॉलेज बढ़ सके और काम अच्छे से हो सके आज के युवा के लिए, तो क्या आपकी कंपनी या अगर आपके हाथ में डिसीजन लिया जाए, आप वो डिसीजन को सपोर्ट करोगे? ज़रूर करेंगे और कर रहे हैं हम लोग। ऐसी कोई मूवी जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ट्राइबल्स पे या फिर मतलब किसी भी तरह से अगर वो कंट्रीब्यूट करेगी, जो स्पेशली ट्राइबल्स या जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सोशल मैसेज है, तो हमारी कंपनी करती है। ये चौधरी साहब को ज़्यादा आइडिया होगा, CSR से जुड़े हैं पहले से। हम लोग अभी फ़िलहाल मैं भी ये छोटा सा कि कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैं डायरेक्ट CSR में नहीं हूँ, आई एम हेडिंग द ऑटोमेशन पार्ट ऑफ द रिग, और जितने तेल के कुएँ और ये सब हैं उसका कोई एक्सीडेंट ना हो मेरी जिम्मेदारी है, सारा सिक्योर्ड चले, सब लोग सेफ रहें। पर हमारे जो काउंटर पार्ट CSR के हेड है मिस्टर भाटिया, वो हमारे साथ बैठते हैं, तो हम लोग उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बार जिसको मैं लीड कर रहा हूँ ट्राइबल एरिया में, महसाना का अंबाजी के आसपास का एरिया में, हम लोग ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट सैटरडे जाते हैं। वहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है CSR के माध्यम से करते हैं, मेडिकल हेल्प देते हैं, बुक्स देते हैं। और अभी हम महसाना की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम रिलेटेड टू ONGC महसाना। हम लोगों ने सुपर 30 की तर्ज पे एक सुपर 60 का चलाया कार्यक्रम। महसाना में एक हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया बच्चों का नीट के लिए, और हमारे 60 बच्चों को हम लोगों ने साल भर कोचिंग दी, CSR के थ्रू ही दिया, और उसमें काफ़ी बच्चे सफलता पाए हैं, 10-15 बच्चे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। ये थोड़ा सा इनोवेट, आपका आइडिया बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा हटके है। हम लोग जो करते हैं वो टेंजिबल, सामने आपने कूलर दे दिया बच्चे को, बच्चों का स्कूल दे दिया, जो दिख रहा है। क्योंकि एक हमारी मॉनिटरिंग कमेटी होती है, वो देखती है कि पैसा प्रॉपर उस उद्देश्य के लिए खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी को सिनेमा बनाने के लिए देना थोड़ा सा नया होगा, बट होगा ज़रूर, लोग होने चाहिए कन्विंस करने वाले। तो अगर आएगा ऐसा कोई प्रपोजल उमा शंकर जी से या किसी से, तो हम लोग इसको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा तो नहीं दे पाएंगे, बट विल वी असिस्ट। पूरा प्रोजेक्ट तो मुश्किल है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट का 2% ही हमें देना रहता है, और एक ही जन को नहीं दे सकते पूरा, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो उसका सम पार्ट, और ये अच्छा है, इनोवेटिव आइडिया है, ये करना चाहिए, इस तरह का प्रपोजल आना चाहिए। आई विल मेक कि ये थ्रू हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने बोला, रामायण के लिए जब ब्रिज बन रहा था, तो इसे गिलहरी का भी कंट्रीब्यूशन था, तो आपने बोला सर 2% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सर। सर ONGC का 2% तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप हज़ारों करोड़ में ही आता है वो। लेकिन आई टुक माइक जस्ट टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट ONGC। हमारे जो लाइब्रेरी वाले इनिशिएटिव में ONGC हैज़ बीन ए सपोर्टर। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द टाइम, what is your message
to the audience, because many are viewing on Facebook Live, this will go live on YouTube as well. जब भी ये कोई देखे तब ये सुनने के बाद क्या मैसेज आप सभी को देना चाहेंगे रिगार्डिंग हाउ टू अचीव एक्सेलेंस इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड, आपके अनुभव के हिसाब से? समझ गया आप सोच मुद्रा हमारा सोचा है। एक्चुअली मैं उमा शंकर जी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। किसको? उमा शंकर जी को। तो मैं इसे कुछ क्रिएटिविटी डिफाइन करता हूँ, तो मैंने सोचा इनके बारे में क्या 2 सेंटेंस। तो हम लोग कहते हैं, पूछते भी हैं कि हमारी पहचान काम से होना चाहिए या कपड़े से? काम से। देखो वो कह रहे हैं काम से, बुजुर्ग आदमी है। नहीं कोई बात नहीं इसीलिए तब तक मैं बात खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो हमारी पहचान काम से होनी चाहिए, कपड़े से नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है। लेकिन मैसेज मेरा ये है कि अगर दोनों हो तो क्या बुराई है, तब तो सोने में सुहागा। और उसके सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? उमा शंकर जी। ये मेरा मैसेज है कि देखिए इनका काम तो अच्छा है ही है, हम सबको घुमा करके पकड़ के ले आए हैं। हमसे वो लखनऊ से पकड़ लाए, इनको दिल्ली से पकड़ लाए, ये तो अपना पूरा दिल्ली छोड़ के आए हैं। तो ये उनका काम है, लेकिन इनका कपड़ा भी ठीक है क्या? इनका अटायर, इनकी स्टाइल। तो अगर किसी का दोनों अच्छा हो जाए तो सोने में सुहागा है। तो मेरे ने आपके लिए डिफिनीसन यही है कि आपका काम भी अच्छा है और आपका कपड़ा भी अच्छा है। और कपड़ा डज नॉट मीन ड्रेस। कपड़ा ये जो अर्थ है ये बहुत बड़ा अर्थ है क्या? कपड़ा जो है, कपड़े में ड्रेस, डिजाइन, बात, व्यवहार, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को पटाना, अपने चंगुल में फंसाना, उनसे अपना काम करा लेना, क्या उनसे अपना काम करा लेना। तो आपका कपड़ा और काम दोनों ठीक है, यही मेरा मैसेज है। सबको कपड़ा और काम दोनों पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज माय मैसेज। अच्छा नहीं, इसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। ये जो बोल रहे हैं इसका रियल लाइफ में भी इसके इम्पैक्ट्स आते हैं। हमारे चेयरमैन जब कोई की पोजीशन खाली होती है, चीफ एचआर इंडिया की खाली हुई, 5-6 नाम जाते हैं, तो वो देखता है। तो ये एक्चुअल में हुआ है, उनका कहना है ड्रेसिंग एंड एड्रेसिंग। जो ये बोल रहे हैं वो सेम चीज़ है, काम और आप कैसे एड्रेस करते हैं और कैसे ड्रेस करते हैं। तो वो 5-6 जो नाम जाते हैं उनमें जो सबसे अच्छा ड्रेसिंग करता है, सबसे अच्छा ओरेटर होता है, क्योंकि बाकी सब में तो बराबर होते हैं। 6 नाम कोई लेके गया है तो वहाँ पे वो फ़र्क करता है। तो मैं उमाशंकर साहब कर रहे हैं और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि मैटर करता है, कहीं ना कहीं मैटर करता है, आपको पता नहीं चलता है। चेयरमैन हमारा वॉच करता है पूरा फ्लोर में कौन क्या कपड़ा पहन के आता है, सब एक लेवल के। सारे जीएम के नाम गए 6, उसकी नज़र में आया कि ये जीएम अच्छा बोलता है और ड्रेसिंग सेंस इसका अच्छा है, तो ही गेट्स द पोजीशन। मैंने एक चीफ एचआरडी को पूछा था, आप एकदम इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर थे, कैसे चीफ एचआरडी हो गए? तो बोले सर ने ये बोला कि ये बढ़िया कपड़ा पहनता है और टाई वाई डेली पहन के आता है, तो उसको पोस्ट मिली। एक चीज़ था। और दूसरा आपको क्वेश्चन मुझे याद नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ इनके वाले में तो हम दोनों फेल हैं। नहीं, ये बात नहीं है। सिंप्लिसिटी ही सबसे बढ़िया, सिंप्लिसिटी ही सबसे बढ़िया ड्रेस है। सिंपल जीवन, हाई थिंकिंग, और तभी हम इतना सिंपल होके आए हैं। टाई वही है हमारे पास, कोट वोट हम जान के नहीं पहन। आई वॉन्ट टू लिव सिंपल, आई वॉन्ट टू बी फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी। सिंप्लिसिटी। थैंक यू सो मच। मैम ने कहा कि मैसेज क्या है, तो आजकल मैसेजेस की तो भरमार है, तो इसलिए मैसेज तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एवरीबडी इज़ टायर्ड ऑफ मैसेजेस। और जहाँ तक बात एक्सीलेंस की है, एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बैठे हुए हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, साहब मेरा बच्चा आईपीएस से मिलना चाहता है, देखना चाहता है, आईएएस से मिलना चाहता है, या और अचीवर से लोगों से। तो मैं उनसे बस इतनी बात कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 7th या 8th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, तो वो आज क्या कर रहा है, 7th और 8th में वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, अपने स्कूल में टॉप 10 में 15 में है या नहीं है। आप इंटर अच्छे से करिए, ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, तब जाके कहीं सोचिए कि एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, वो बहुत दूर की बात है। तो एक्सीलेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में होगी,
हमारे डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं हम अपने घरों में, आपने देखा होगा लेडीज़ किस तरह से कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, कैसे सजावट की जाएगी, कहाँ कर्टेन लगेंगे, किस कलर के लगेंगे, ये सब एवरीथिंग दैट वी लिव इज़ पार्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस ओनली। एक बहुत इम्पॉर्टेंट छोटी सी कहानी भी है कि एक सच्चाई ज़िंदगी की और एक अच्छा इंसान बनने वाली जो बात मैंने कही थी, दो यंग बच्चे थे और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे और उनके पास फ़ीस में पैसे कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या क्या इसके लिए कुछ फंडिंग की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक पियानिस्ट थे फेमस, उनको अप्रोच किया, उनके मैनेजर को। तो उसने कहा कि आप कम से कम $2000 की गारंटी दीजिए कि इस परफॉर्मेंस से हमारे जो बजाने वाले हैं पियानिस्ट हैं उनको $2000 मिलेंगे। तो दोनों बच्चों ने कमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम $2000 आपको देंगे, आप आइए हमारे यहाँ परफॉर्म करिए, हमारे जो भी वेन्यू है जैसे आज यहाँ पर हो रहा है। उन बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की एंड दे कुड अरेंज ओनली $1600। प्रोग्राम ख़त्म हो गया, वो मैनेजर के पास और पियानिस्ट जो थे उनके पास, पेड्रेवस्की नाम था, उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा सर हमने बहुत कोशिश की बट वी फेल्ड, वी हैव ओनली बीन एबल टू मोबिलाइज $1600 हम लोगों के पास हैं और $400 का हम एक प्रोमिजरी नोट आपको देना चाहते हैं कि जब हम कमाने लगेंगे कुछ करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको पे कर देंगे। तो जो पियानिस्ट थे उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया, उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल गलत है, तुम अपने पहले इसमें से सारे एक्सपेंसेस निकालो, जितना मिनिमम तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तुमको ज़रूरत है उतने पैसे रखो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो मुझे दे दो। दोनों ने बच्चों ने कहा बहुत अच्छी बात है और वो बात ख़त्म हो गई, चले गए। कई 20 सालों बाद पोलैंड के थे वो पियानिस्ट जो रहने वाले थे, बच्चे भी हो सकता है वहीं के रहने वाले हों। तो वहाँ पे कोई फेमिन की सिचुएशन बनी और बहुत हेल्प की ज़रूरत थी, फूड ग्रेन्स की, इन सब चीज़ों की। तो पियानिस्ट वैसे सोच रहे थे कि अब मैं किस आदमी के पास जाऊँ और क्या होना चाहिए। तो अचानक वहाँ पर जो है रसद आना शुरू हो गई, फूड पैकेट्स आना शुरू हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गए। तो देन ही ट्रेवल्ड और जब उस वहाँ मिले जो आदमी कर रहा था, ही हैड बिकम ए मिनिस्टर बाय दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गॉड सेंड गिफ्ट था जो आपने इस क्राइसिस में हमारे लोगों की मदद की और इतनी आपने सब्सिडीज़ भेजी, रसद भेजी, राशंस भेजे। तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं बहुत छोटा बच्चा था और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था। तब उन्होंने ये दृष्टांत उनको सुनाया। तो ये जो सच्चाई है ये हम लोगों को ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाती है। तो बच्चों को ये चीज़ भी ज़रूर हम लोगों को बतानी चाहिए, यही एक्सीलेंस है और इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल स्टोरी सर। आई थिंक इससे बढ़िया अंत कुछ हो ही नहीं सकता है। दुष्यंत कुमार की बहुत ही प्रख्यात पंक्ति है, एक कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही होता है एक्सेलेंस के लिए, कोशिश करनी होती है, जैसे सर सभी ने बताया कि हर रोज़ की कोशिश होनी चाहिए। आई थिंक फ्रॉम द ऑडियंस 2-3 questions with the permission of time we may take and then we may end it. Anybody from the audience? Anyone wants to ask the question, please kindly raise your hand. तुलसीदास का पन है सर, नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को नहीं, उसी को नरक पड़न को डरत है। अच्छे लोग नरक पड़न को डरत है, नर कपड़न को नहीं। वॉट एवर दे वेयर दैट इज देयर यूनिफॉर्म, दैट इज देयर ग्रेस। थैंक यू सर। इन चीज़ों को करते हुए मैं देखा आप बहुत मतलब मुस्कुराते रहते हो और कूल रहते हो। और पुलिस का जॉब और ट्रैफिक की तो समस्या कितनी ज़्यादा है, आजकल आप ट्रैफिक संभाल रहे हैं।
तो ये क्या आपका जो एएमयू का लिटरेचर है, जैसा मैडम बता रही थी कि बैकग्राउंड है, फिर आपने एमबीए किया है, उसका असर है जो आप मैनेज कर पा रहे हो चीज़ें? इसमें एजुकेशन और इंस्टीट्यूट का भी फ़र्क होता है क्या? मैं तो समझ रहा था कोई पीछे से पूछेंगे तो सबसे ख़तरनाक आदमी ने सवाल पूछ लिया। तो ये जो हीरालाल जी कह रहे हैं और अभी हमारे सर ने भी बात कही कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उस बैलेंस के लिए मेरा मानना ये है कि आदमी को लिटरेचर से, म्यूज़िक से, आर्ट से ज़रूर जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you to all our guests for their experiences, stories, and insights. I would now like to request Mr. Rohit Bajpai, General Manager of Renaissance by Marriott, Dr. Sagar, the lyricist, and Uma Shankar sir to give away the mementos. Now this is your session, and will you be sitting here?